Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that worm fungi increases phosphorus absorption? So we use this worm fertilizer for absorption of phosphorus, and when we use this worm fertilizer, phosphorus uptake is increased and definitely there is increased growth and increased yield in crops. तो जब हम वैम फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं तो फास्फोरस का अपटेक बढ़ता है और उससे यील्ड भी बढ़ती है. तो व्हाट इज़ द रीज़न दैट दिस वैम बायो फर्टिलाइजर और वैम फंगस increases phosphorus absorption? So this is fungus, actually it is Arbesculus mycorrhiza fungus, and if we see the name, कि इसका नाम क्या है वैम, why we are saying it is a वैम fungus or वैम biofertilizer, वैम fungus or biofertilizer. It is very common and available in the market, and we use this fertilizer. Actually it is fungus. We stand for vesicular, and A is for arbescular. ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, उसके नाम पर arbescular, उसके नाम पे इस ये नेम दिए गए हैं. एंड इट इज़ mycorrhiza. And mycorrhiza is a fungus. Actually this is fungus which has association with the root. So ये जो वेसिकल्स बनाती हैं, आर्वेस्कुलर जो है गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके नाम पे ये जो फंगस है जो रूट के साथ एसोसिएशन रखती है, रूट के अंदर पेनिट्रेट होके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम आर्वेस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो ये फंगस का नाम है वेसिकुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा, या इसे हम एम फंगस भी बोलते हैं. तो व्हाट इज द रीजन दैट ये जो स्पेशल फंगस है यही फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ाती है, कोई दूसरी फंगस क्यों नहीं बढ़ाती है फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन? तो इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो फास्फोरस का जो अपटेक होता है, प्लांट एब्जॉर्ब द फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ दिस H2PO4 सिंगल माइनस मोनोवैलेंट और HPO4 divalent. It is primary orthophosphate and it is secondary orthophosphate, and plant use this phosphorus. केवल यही फॉर्म को plants absorb करते हैं, but these forms are highly reactive, बहुत रिएक्टिव होती हैं, and और इनका ऐसा सॉल्यूशन में बड़ा रेयर पाई जाती हैं. एक्चुअली अंडर एसिडिक कंडीशन they make compound with aluminum and aluminum phosphate, iron phosphate, and under alkaline condition when pH is less than 7, then this phosphate make the compound with the aluminum iron, because these are highly soluble, and pH is more than 7 under alkaline condition, pH more than 7, then there is a dominance of calcium, and calcium phosphates are there, calcium monophosphate, calcium diphosphate, calcium triphosphate, and these compounds, these जो compound बनते हैं, these are insoluble compound, and that's why this phosphorus is not available to the plant. तो जो हम phosphorus डालते हैं, चाहे हम DAP से डालें, SSP से डालें, NPK फर्टिलाइजर से डालें, जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं, ये सॉइल में इस तरह के रिएक्शन करके उसको इंसॉल्युबल कर देते हैं, एंड दैट्स वाई फास्फोरस अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड. तो जो हम फास्फोरस फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो सॉइल में जाके इंसॉल्युबल हो जाता है और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है. इस कारण से हमें बहुत ज़्यादा डोज डालनी पड़ती है फास्फोरस की, जिससे हमें केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा डालना पड़ता है. लेकिन ये फंगस क्या करती है, इसको सॉल्बलाइज करती हैं एंड इंक्रीजेज द अपटेक. हाउ? और अगर ये ऐसा कर रही है तो हमें इसका रिस्पांस मिलता है और हमें इस तरह के बायो फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए. वैम फंगस कैसे करती है इसको मैं यहाँ आपको बताऊँगा, how it is helpful in phosphorus absorption. Actually this is worm is mycorrhiza that has association with the root. तो जो mycorrhiza है इसका root के साथ association होता है. अब इसका कैसे, how does it work, इसको समझिए. मान लीजिए this is the plant and this is the these are the leaves and these are the roots, in general roots, and these roots are in soil solution, and it is not inoculated with this worm. और इस मान लीजिए इस रूट में कोई वैम नहीं है, मतलब फंगस का एसोसिएशन नहीं है, बट व्हेन इट इज इनोकुलेटेड विद द वैम, इसको अगर हम इसमें वैम फंगस का इनोकुलेशन हो जाए, देन इट सराउंडेड द रूट सरफेस. तो ये क्या होगी, इस पूरी रूट सरफेस को सराउंड करेगी, इनोकुलेट करेगी, एंड देन दिस रूट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. सो दिस इज द वैम इनोकुलेशन. तो इससे क्या हुआ, जो पहले रूट्स थी अब उसका रूट का वॉल्यूम बढ़ गया, एंड दीज आर द वैम फंगस. दिस इज वैम, वेसिकुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा फंगस. ये नेचुरली होती है, इट इज़ अवेलेबल नेचुरली इन मैनी प्लांट्स, बट अगर हमारे फील्ड में इसको एनोकुलेशन करना चाहते हैं तो हम वैम बायो फर्टिलाइजर को यूज़ कर सकते हैं. इसके पैकेट्स आते हैं, दिस पैकेट्स आर अवेलेबल, वैम बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी कैन यूज़
जो इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कीजिए, जो भी उसका एप्लीकेशन रेट दिया हो, और इसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है क्योंकि रूट के साथ इनोकुलेट करती है। एंड देन दिस इंक्रीजेज द नाउ द रूट एरिया, जो सरफेस एरिया है वो रूट्स का बढ़ जाता है। एंड नाउ हियर सपोज एल्युमिनियम फॉस्फेट इज देयर, iron phosphate is there, and calcium phosphate is there, and several adsorb phosphorus form is there, and these are the insoluble form, and these are not available to the plant. अब ये insoluble है, पानी में घुली नहीं रही है तो available नहीं होगी, but these roots secrete some acids, some organic acids. ये जो फंगस है ये कुछ बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो सिक्रीट्स करते हैं, एंड ड्यू टू दिस ऑर्गेनिक एसिड दीज बिकम सॉल्युबल, and now phosphorus is released as a H2PO4 or HPO4, which is known as inorganic phosphate. इसको हम बोलते हैं inorganic phosphate, इसको हम लिख सकते हैं PI. now it is released, now this is released. तो अब क्या होगा, इसके जो सराउंडिंग एरिया में जो है ये जो इस फंगस थे, यहाँ जो है PI रिलीज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस सिक्रेट द एसिड्स. नाउ दिस इज सिक्रेटेड. अब इसका सिक्रेशन क्यों हुआ, पहले तो नहीं था, पहले तो ऐसे ही था सॉइल में, तो इसको रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, बिकॉज दिस फंगस सिक्रेट सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स विद डिजॉल्व. अब क्या करेंगे, ये जो हाइपी है, हाइपी बोलेंगे जो फंगस का जो इनोकुलेशन है उसको जो हाइपी बोलते हैं, जो फंगस आगे बढ़ती है, दैट इज नोन एज हाइपी. तो इसकी जो हाइपी है ये क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, एंड देन ये जो PI इसने एब्जॉर्ब किया, एंड देन इट मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ PI, इसको बॉन्ड के साथ जोड़ती चलेगी. तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ये था, इस तरह के जो बॉन्ड जोड़ते जाएंगे, एंड इट मेक द पॉलीफॉस्फेट. नाउ पॉलीफॉस्फेट्स आर प्रेजेंट इन दिस हाइपी, एंड several many inorganic phosphate join together with the pyrophosphate bond. ये इसकी केमिस्ट्री है कि पायरोफॉस्फेट बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं, और ये जो कहाँ से पहले तो कहाँ यहाँ से आया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको बोल रहे हैं MsPO4 H2PO4 को, और ये जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं, लीनियर पॉलीमर है, इसको बोलते हैं पॉलीफॉस्फेट. सो दिस वैम हाइपी सिंथेसाइज दिस पॉलीफॉस्फेट. अब इसके अंदर कई सारे पॉलीफॉस्फेट्स हैं. दिस पॉलीफॉस्फेट्स नाउ आर ट्रांसलोकेटेड टू रूट, और ये रूट्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगे. यहाँ से देखिए ये जो रूट पे है, इसको रूट को दे देंगे अंदर, एंड देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू शूट. सो इन दिस वे द फास्फोरस एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड, एंड देयर में भी वैम दिस जो वैम तो इंडोमाइकोराइजा है, मतलब कॉर्टेक्स सेल के अंदर तक जाती है रूट के. कुछ एक्टोमाइकोराइजा होती हैं जो ऊपर तक रखती हैं, तो डायरेक्टली दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय एपिडर्मिस एंड द रूट हेयर, एंड अदरवाइज इट इज इंडोमाइकोराइजा. इंडो मतलब जो रूट के सेल वाल को अंदर जाकर के उसके स्ट्रक्चर होते हैं, कॉर्टिकल सेल तक जाती है, और वहाँ जाके इस फास्फेट को रिलीज कर देती है, आइदर एज ए पॉलीफॉस्फेट, या कि पूरा पॉलीफॉस्फेट के तरह चला जाता है रूट के अंदर तक, या इसको टूट के अंदर तक चला जाता है, PI इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है. देन इट इज रीच्ड इनसाइड द रूट, then it is transported to the shoot. In this way phosphorus is available to the plant. So this is the mechanism. So this mechanism is only due to this fungal association. This is the symbiosis. Symbiosis in this sense, इसको symbiosis हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फंगस क्या कर रही है, जो फॉस्फेट प्लांट को पहले अवेलेबल नहीं था, इसको अवेलेबल कराया, अपने अंदर उसने हाइपीन अपने अंदर लिया, उसका सिंथेसिस किया, पॉलीफॉस्फेट्स बनाए, और उसका ट्रांसफर किया रूट के अंदर तक, रूट के अंदर से इसको ट्रांसपोर्ट हुआ. अब ये प्लांट इसके बदले में क्या देते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट देते हैं. इस फंगस को बढ़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो ये जो कार्बन देते हैं, कार्बन सोर्स कौन देता है, प्लांट देता है. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस. ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस ये है कि जो कार्बन के लिए ये वैम टोटली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट. तो प्लांट सप्लाई द कार्बन, टू द वैम, एंड वैम सप्लाई प्लांट द फास्फोरस. सो दिस इज द सिम्बायोसिस, और ये जनरली बहुत सारे प्लांट्स में होता है. तो हम जो फील्ड में ग्रो करते हैं, शुगर केन, मेज, राइस, वीट, बाजरा, जो भी क्रॉप है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. वैम फर्टिलाइजर को ये अवेलेबल है मार्केट में, उससे फास्फोरस की एबिलिटी बढ़ जाती है. एंड इन जनरल फास्फोरस एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी और यूज एफिशिएंसी इज वेरी पुअर, बिकॉज फास्फोरस गेट फिक्स्ड इनटू द सॉइल. तो जो भी मैंने अभी शुरू में बताया था कि जो भी हम फर्टिलाइजर सॉइल में डालते हैं वो फिक्स हो जाता है फास्फोरस उसका.
वाटर सॉल्युबल है वो फिक्स हो जाता है क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स हैं। उस कारण से प्लांट्स अगर उसमें वैम का इनोकुलेशन नहीं है या बहुत कम है तो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो जो हमने फास्फेटिक फर्टिलाइजर डाला है उसका हमें यूज नहीं मिल पाता। इफ देयर इज अ वैम इनोकुलेशन, अगर मैं वैम फर्टिलाइजर डाला है, देयर इज अ वैम इनोकुलेशन, डेफिनेटली वैम विल सीक्रेट सम ऑर्गेनिक एसिड, इट विल सॉल्युबलाइज द इनसॉल्युबल फॉस्फेट कंपाउंड, देन देयर इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीफॉस्फेट, देन एंट्री इनटू द रूट, देन रीच टू द टॉप। सो ये जो फास्फोरस था इस कारण से इस वैम से यहाँ इस वैम से वैम में गया, वैम से इस प्लांट रूट के अंदर आया, रूट से ये शूट में गया। इन दिस वे दिस वैम फर्टिलाइजर इंक्रीजेज phosphorus. So VAM fertilizer are very helpful in phosphate nutrition, phosphorus nutrition. Secondly, this help absorb the water, not only phosphorus. तो ये phosphorus तो कर ही रहे, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इसका जो रूट वॉल्यूम है, रूट फॉरेजिंग एरिया इज इंक्रीज। सो दैट्स वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रेनफेड एरिया, ड्राई एरिया, जहाँ सॉइल मॉइस्चर कम है तो रूट का एरिया बढ़ जाता है, फंगस नीचे तक चली जाती हैं, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट तक पहुँचाती हैं। एंड आल्सो एब्जॉर्ब द अदर न्यूट्रेंट आल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल फास्फोरस को कर रही है, जिंक को भी करते हैं, सल्फर को भी करते हैं, दूसरे न्यूट्रेंट भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आता है वो फास्फोरस पे आता है। तो ये नॉट ओनली दी फास्फोरस बट आल्सो हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन इन अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। तो जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक है, सल्फर है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है, ड्रॉट कंडीशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जब न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है तो प्लांट हेल्दी रहता है, जब प्लांट हेल्दी है तो उसमें डिसीजेज भी कम आती हैं, तो वो एक तरह से इसमें डिसीजेज भी कम हो जाती हैं। अगर वैम का इनोकुलेशन कम है, सॉइल बॉर्न डिसीजेज कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि डिसीज नहीं आएगी, लेकिन वो डिसीज कम हो जाएंगी। सो इट इज़ हेल्पफुल इन फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, अदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड प्लांट बिकम हेल्दी एंड लेस इंसिडेंस ऑफ डिसीजेज। तो ये एक रीज़न है कि वैम जो है फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। और जो इंडोमाइकोराइजा है, इंडोमाइकोराइजा वो माइकोराइजा है जो रूट के अंदर तक जा रही है। कुछ माइकोराइजा रूट के ऊपर रहती हैं, एक्टोमाइकोराइजा होती हैं, जो मान लीजिए ये रूट है और ये रूट्स हेयर है, मान लीजिए ये रूट्स हेयर हैं, ये रूट्स हैं। तो जो माइकोराइजा है वो कहाँ रहेगी, वो या यहाँ रहेगी, इस रूट पे यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, इस पूरे रूट पे रहेगी। तो ये जो ऊपर रहेगी रूट, ये एक्टोमाइकोराइजा है। तो इसमें जो होगा एब्जॉर्प्शन सीधे कहाँ होगा, रूट हेयर तक पहुँचाएगी, डायरेक्टली दे देगी। और अगर एंडोमाइकोराइजा है तो इसकी अंदर तक चली जाती हैं, इसका पेनिट्रेशन अंदर होता है और ये आर्बेस्कुलर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो ये देखिए एंडोमाइकोराइजा, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, तो ये तो एक्टो है, एक्टोमाइकोराइजा, और ये जो है एंडोमाइकोराइजा है। तो ये एंडो तो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन जो हुआ उसको नीचे अंदर तक, रूट तक, कॉर्टिकल सेल तक पहुंचा देती है। ये आर्बेस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके इस तरह के, अंदर तक इन्फेक्शन कर देते हैं रूट हेयर्स में और ये रूट्स में, और इससे जो अंदर ये इस रूट के अंदर तक जब जाएगा रूट हेयर तक, तो ये पूरा रूट में होते हुए पूरा ट्रांसपोर्ट जो है ऊपर तक हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे हाउ दिस वैम बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस फास्फोरस न्यूट्रिशन। इसलिए हमको जो वैम फर्टिलाइजर है इसको हमें हर क्रॉप में यूज़ करना चाहिए, सो दैट फास्फोरस यूज इफिशिएंसी इज इंक्रीज। जो फास्फोरस यूज इफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो फिक्स हो जाता है और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता। अगर हम वैम का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दिस फास्फोरस क्या है, अवेलेबल हो जाएगा, सॉल्युबलाइज होगा, सॉल्युबलाइज होकर प्लांट रूट तक पहुंचेगा और उसकी यूज इफिशिएंसी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई वी शुड यूज वैम फर्टिलाइजर फॉर इंक्रीजिंग फास्फोरस अपटेक। थैंक यू वेरी मच।